Hello. So you tell me, as I have already taught you the basic things about the Good relational afternoon, sir. algebra. Good afternoon. So सर अगर now I अपना need to आवाज तो discuss आता these ना things again on a network. I think network problem. Okay. Is it Sir, coming now? আহিছে খালি একদম সৰু সৰুকে আহিছে। আচ্ছা. So I think network problem হৈ আছে সেইটো কাৰণে অহা নাই চাগে. Okay. So what I was actually telling you that relational algebra we have already gone through. Okay, but this is again a part of your ADBMS syllabus. So I want to know from you guys that whether you want me to discuss those things again or can I skip that portion? Hello. Yes, sir. तो मुझे ये बताइए आप लोग क्योंकि आप लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेशनल अलजेब्रा Yes, ठीक है yes, sir. तो क्या मैं फिर से उसको डिस्कस करूं या नहीं करूं ये बता दीजिए आप लोग सर मैं तो चाहता सर हूँ एक सर बार कर ऊपर से दीजिए सर। यस सर ऊपर से हाँ सर सर एक बार बोलना कर होगा नहीं तो हाँ सर थोड़ा सर थोड़ा एक हाँ ही एक सर। सबसे पूछे डिस्कस सर कर। मैं तो ओके सो ओके नो प्रॉब्लम पूरा क्लास क्या कह रहा है ना सर यस सर हाँ ठीक है मैं फिर से डिस्कस करता हूँ ठीक है यस सर ओके And I hope you already know about the enhanced ER diagram. As we have discussed the ER diagram, then we have enhanced ER diagram. That that is the advanced portion of ER diagram. I hope you know that. That is aggregation, generalization, specialization, those things that we discussed in your second sem. यस सर 3 एनएनसीआर मॉडल में जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन एंड एग्रीगेशन 3 टॉपिक था सर यस सर तो मैं इसलिए वो टॉपिक को फिर से नहीं दिखा बट रिलेशन अलजेब्रा इज वेरी इंपॉर्टेंट सो I have to discuss it again and from your point opinion also I will go through it again. यस सर Okay. So first of all, what do you understand by algebra? Can you tell me? अलजेब्रा में वेरिएबल्स होगा सर एक्स और वाई यस सर और तो इक्वेशंस भी होगा सर हाँ और सही बोला आपने बट और कुछ चीज है हेलो सर अलजेब्रा में यस सर हाँ सर नंबर्स और मतलब वेरिएबल्स मिक्स करके लिखेंगे सर अलजेब्रा में जैसे 2x + 3y 2x + 2y ठीक है क्या ऐसा भी है कि हाँ वहाँ पे कुछ ऑपरेशन करते हैं ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं यस सर लाइक यू नो प्लस ओके यस सर हाँ सर माइनस these things we do in फिर algebra right कार्टेशियन प्रोडक्ट वगैरह
Yeah. Sir, Good. sir, the arithmetic operation of addition, multiplication, sir. Yes, yes, very good, Gautam. Actually, those algebraic operations, those arithmetic operations, so that is a part of our algebra, right? So what I mean to say that in algebra we do perform some operations. Okay. Similarly, this relational algebra, from the term itself, you got it that again we are going to perform some operations, right? And that operations should be performed in those relations, those tabular structures, and those tabular structures you already know that we have rows and couples. Columns. Okay, means that attributes, right? So there is a term tuple. I hope you have heard it. So what is that? Tuple आपने सुना होगा सर, जो मैंने पहले भी So डिस्कस किया है. columns, sir. Tuple, TUPL. Yes, sir. Tuple, actually this is a row. Okay, attributes are the columns. tuple मतलब हमने क्या किया है, पूरे जो टेबल्स हैं, देखिए मैं बताता हूँ. कोई भी एक टेबल आप कंसीडर करो, ये वाला टेबल. हेलो. Yes, sir. ओके. Yes, sir. तो ये जो है, this row is your tuple. ठीक है. And the attributes ID, name, department name, salary, okay, they are your. Yes, sir. Sir, your voice is not coming, sir.
Hello. Yes, sir. यार बड़ी दिक्कत है ये सच में. हेलो. सर आपका वॉइस कट रहा था सर, पूरा ही मतलब नहीं आ रहा था. हाँ मुझे कुछ भी ये दिखा रहा था ड्रॉपिंग. क्या बोले. ओके कहाँ पे था. कम से कम 10-12 बार मैंने पूछा आप लोगों को अभी कि am I audible or not. सर सुनाई नहीं दे रहा था तो हम लोग की बोल नहीं पा रहे थे. अच्छा. हाँ यह समझ में नहीं आता है ना मतलब आप लोगों को सुनाई दे रहा है या नहीं. चल मैंने कोई बात बोला नहीं. सर, मैंने बोला था सर आपका वॉइस नहीं आ रहा बोल के. अच्छा अभी आ रहा है ना. अभी आ रहा है. हाँ तो देखो तो कुल मतलब मैंने क्या कहा ये पर्टिकुलर रो को कंसीडर कर रहा हूँ. इसमें हर एक एट्रीब्यूट रहेगा. ये क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ मेनी हाउ मेनी एट्रीब्यूट्स may present in a tuple at maxima. तो आंसर होगा all the columns. ओके all the attributes. सर ठीक है. तो जैसे मैंने कहा रिलेशनल अलजेब्रा मतलब वो सारे ऑपरेशन जो हम एक रिलेशन के ऊपर परफॉर्म करेंगे. दोस ऑपरेशंस व्हिच वी आर गोइंग टू परफॉर्म ऑन ए पार्टिकुलर रिलेशन. और अभी तक के आप लोगों को ये समझ में आ चुका है कि रिलेशन मतलब क्या है. सिंपल सेंटेंस में हम भैया. ठीक है. तो एक टेबल में हम जो मतलब ये आपका एट्रीब्यूट्स है उसमें जो भी आप इंफॉर्मेशन रखते हो ठीक है वो अपने आप में एक क्या है रिलेशन है. राइट. सो रिलेशनल अलजेब्रा इज द अलजेब्रा or those operations that we can perform with respect to a relation. ठीक है. Similarly हमारे पास है relational query language. Okay. Relational query language is the language in which user requests information from the database. ठीक है. सर आपका Query स्क्रीन शेयर नहीं क्या है. क्या बात कर रहे हो. स्क्रीन भी दिखाई नहीं दे रहा है. नहीं सर. अरे नहीं यार सर. ये क्या कर रहे हो राजेश. गलत बात है. मेरा स्किन भी स्कैन नहीं हो रहा है अभी. अब हो रहा है. अब तो दिखाई दे रहे हैं. राइट. यस Yes, सर. sir. स्क्रीन कौन देखा हाँ था. yes, sir. ओके ओके. So relational query language. Query, you know that query, we do perform queries because to request information from the database. ठीक है. So ये दो टाइप का है procedural and non-procedural. Okay. So non-procedural means declarative. याद रखना ये चीज. ठीक है. ठीक है. Then pure languages under which we have relational algebra. ये क्वेश्चन बार बार पूछते हैं कि what type of language this relational algebra is, procedural or non-procedural. Answer is procedural. Okay, please note it down. Relational algebra falls under procedural type of language. Then algebra तो मैंने आप लोगों को बता दिया based on some operators like you guys already know arithmetic algebra. Just 1 plus 5 cross 3 ये क्या है. एक algebraic equation है. Now how to query determine which relations. सर আপোনাৰ ভইচ অহা নাই. Sir, your voice is not coming, sir. सर Is it audible or not, please, because I'm continuously speaking in this side. Yes, I yes, totally sir. सर আপোনাৰ মাজতে আহে আকৌ ৰখি যায়. মই কি কৰিম এতিয়া network problem I think. Let me check. Let me connect from my own network. Okay.
ঠিক আছে, এতিয়ালৈকে বুজি পালা? I hope this procedural and non-procedural, you got it, and you also got that Yes, sir. relational algebra falls under procedural. Procedural. স্যার আকৌ গ'ল। Sir, Can you see my screen now? no, sir. But I have, let me check. আহিছে স্যার, আহিছে। Okay, এতিয়া আহিছে। okay, now I am trying to connect from my own network. Hello. Yes, sir. Yes, sir. I hope this will work now. Okay. Yes, sir. ठीक है, देखते हैं. So this portion clear. In this slide, one important fact that I told you, that is relational algebra falls under procedural type of language. ठीक है, ये note down कर लेना. Now, in relational algebra, we have several operators. Okay, like select operator, project, natural join. Is screen visible to you or not? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Visible. Okay. So in relational operators, we have several operators, and these are select operator. The symbol दिखाई दे रहा है आपको. Project operator. This is the project operator. Then we have natural join. Then we have Cartesian product. Then we have union, intersection, set difference. ठीक है. Now we are going to study each of these operator with respect to some examples. एक चीज हमेशा याद रखना, the operators means यहाँ का कोई भी operator ले लो, it will take one or two relations as inputs and produce a new relation as a result. मतलब जो भी operation perform होगा, out of which आपको एक relation output मिलेगा. ठीक है, मतलब जो भी output मिलेगा वो भी अपने आप में क्या है, एक relation है. ठीक है. Now
I'm considering select operator. I hope this table is visible to you. I'm considering this relation R. Yes, sir. Yes, A B C D. यहाँ पे मैंने 4 tuples consider किया है. I am considering 4 rows here. अब selections का काम ही है क्या? आपको particular tuples को रिटर्न करना. मतलब एक कंडीशन रहेगा, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो आपको वो सारे रोज मिल जाएगा. ठीक है, जैसे मैं मान लेता हूं मेरे पास एक क्वेरी है. हमेशा याद रखना, ये सब जो हम पढ़ रहे हैं क्वेरी, ये क्वेरी का काम ही है क्या? कुछ इंफॉर्मेशन डेटाबेस से फाइंड आउट करना. ठीक है, with the help of a query actually we request information from the database. तो ऐसा क्वेरी आप परफॉर्म तभी कर पाओगे इफ यू हैव आइडिया अबाउट व्हिच रिलेशंस टू यूज एंड व्हिच ऑपरेटर्स टू यूज. आपको ये आइडिया आपके पास होना चाहिए कि क्या ऑपरेटर आप यूज करोगे और कौन से रिलेशन है जिसके ऊपर ये ऑपरेटर्स आप अप्लाई करो. ठीक है, हालांकि ये वाला जो मैं कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ पे एक ही है रिलेशन. जो क्या क्वेरी में कंसीडर कर रहा हूँ, सिलेक्ट टुपल्स विच a is equal to b and d greater than 5. ठीक है, मतलब हमें वो सारे टुपल्स चाहिए. वी वांट दोस टुपल्स where the values of for the attributes a and b are equal and also d greater than 5. मतलब a और b का वैल्यू सेम होना चाहिए, साथ में d का वैल्यू 5 से ज्यादा होना चाहिए. राइट, आप ये ऊपर वाला टेबल को देखो और 5 से ज्यादा कौन कौन सा रो में है मुझे बताओ. Look at the above this first table and tell me which are those rows where d value is greater than 5. Sir, row 1, 2, and 4. Row 1, 2 and 4. Okay, very good. क्योंकि यहाँ पे आपका d का वैल्यू क्या क्या है, 7, 7 and 10. ठीक है, Yes, sir. तो जब ये इसका इस क्वेरी का एक कंडीशन 1, 2 and 4 इस रो के लिए सेटिस्फाई हो रहा है. ठीक है, फॉर दिस रोज वन कंडीशन इज सेटिस्फाइड. बट हमें ये भी देखना है कि what is the other requirement or what is the other condition. Other condition says that a should be equal to b. Now you tell me for which tuples this condition is being satisfied. So 1 and 4. 1 and 4. Okay, anyone else? One and 4. Any other response? One and 4. क्यों 3 क्यों नहीं? Why not 3? सर इधर पे कंडीशन दो कंडीशन था, अगर a इक्वल टू b होगा एंड d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ग्रेटर देन 5. तो सर d तो b तो नंबर 3 में d है ना सर, इसलिए तो सर वो एक कंडीशन तो 1 तो सेटिस्फाई है लेकिन कंडीशन 2 सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा. Okay, so in that case, when you are considering both your conditions, then you are correct. But if I say that only a is equal to b, then सर ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि सर a इक्वल टू b तो है, लेकिन सर d तो ग्रेटर देन 5 नहीं है सर, ये नंबर 3 है सर. और सर एक वर्ड लगाए एंड लगाए, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी जाके हम लोग आंसर चूज कर सकते हैं. अगर और लगाते तो सर वो थर्ड वाला रो भी सेटिस्फाई हो जाता है. यस सर. ठीक है, very good answer. So ultimately we have got that this row number 2 and row number 4, they are satisfying both the conditions. ठीक है,
So with respect to this query, we can frame a relational algebra equation, and that will be the select operator with respect to A is equal to B conjunction D greater than 5 from R. जो सबसे नीचे आपको दिखाई दे रहा है ये, ठीक है, माउस कर्सर के पास जो इक्वेशन दिख रहा है, इससे हम ये वाला इक्वेशन, ये वाला जो क्वेरी हमने परफॉर्म किया वो लिख सकते हैं. Now you tell me whether this equation is clear or not. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं आप लोगों को और एक क्वेश्चन दूं कि select those tuples where alpha is not equal to b and means sorry, a is not equal to b and d is less than 10. Select those tuples where a is not equal to b and d is less than 10. What will be the respective relational algebra equation for this? Can you write? Sir, only one row satisfies, sir. Row number 2. Okay. First of all, write that equation. Equation को लिखो. ठीक है, कोई बात नहीं. इक्वेशन को क्या करना है बाद में दे देना कमेंट से, ठीक है. Yes, sir. कैसे लिखोगे मैं यही सोच रहा था, कैसे देखूंगा. चलो कोई बात नहीं. ऑनलाइन क्लास में तो थोड़ा बहुत ये है. एनीवे, वेरी गुड, योर आंसर इज करेक्ट, बट डू कमेंट इट फॉर दिस विद दिस इक्वेशन, ठीक है. अब मैं नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट ऑपरेटर पे आता हूँ, वो है आपका प्रोजेक्शन, ठीक है. प्रोजेक्शन मीन्स व्हाट? वी आर ट्राइंग टू प्रोजेक्ट ऑन सम पर्टिकुलर एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट्स. मैं यहाँ पे प्रोजेक्टर का आपको पता है, प्रोजेक्टर मतलब क्या है? हम वर्टिकली कोई एक एट्रीब्यूट या एक से अधिक एट्रीब्यूट के ऊपर क्या करते हैं? फोकस करते हैं हम लोग, ठीक है. वी आर ट्राइंग टू फोकस ऑन वन और मोर एट्रीब्यूट्स. सो यहाँ पे मैं रोज की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट कॉलम्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है. याद रखना, प्रोजेक्शन ऑलवेज ट्राइंग टू सिलेक्ट द एट्रीब्यूट्स और कॉलम. तो इसका जो सिंबल है ये पाई, ठीक है, और पाई ऑफ आर. अब हम एक एग्जांपल लेते हैं. प्लीज कंसीडर वन एग्जांपल. से सिलेक्ट कॉलम्स ऑफ ए एंड सी फ्रॉम दिस टेबल आर. तो हम कैसे करेंगे? दिस पाई ऑपरेटर नीचे आप क्या लिखोगे? ए कमा सी फ्रॉम आर. एक चीज याद रखना, जो मैं यहाँ पे इटालिक में लिखा हूँ, आई एम राइटिंग इन इटालिक, दैट डुप्लीकेट्स आर रिमूव. इससे क्या समझ रहे हो? व्हाट यू गॉट फ्रॉम दिस? Redundancy is removed, sir. राइट, ठीक है. तो this has that benefit that we are actually removing the duplicate. Okay, यहाँ पे आपको जैसे मैं A and B, we are trying to select the columns A and B. Then what would happen? The values you see, alpha 1, they are repeated twice, right? But only one value will appear in the result, that is alpha 1. ठीक है, समझ में आ गया? इसी तरह मैंने आपको बोल दिया एक कॉलम बी को सिलेक्ट करो. कैसे करोगे? पाई बी ऑफ आर, ठीक है. या आ गया समझ में सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके, वेरी गुड. आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट. आप एक क्वेरी लेते हैं हम, ठीक है. ये इंस्ट्रक्टर है, इंस्ट्रक्टर टेबल है. नाउ query is that return those instructors whose salaries are more than 85K. तो हमें वो इंस्ट्रक्टर चाहिए जिसका सैलरी 85K से ज्यादा है. आपने देखा, दिस इज द इंस्ट्रक्टर टेबल
where we have ID, name, department name, and salary. Hello? I'm Yes, audible, sir. na? Yes, sir. Yes. हाँ, Yes, दीदी sir. जी Yes, कुछ sir. बोलते हैं। हाँ, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए? इंस्ट्रक्टर्स का इंफॉर्मेशन जिसका सैलरी। अच्छा, हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं सिलेक्ट ऑपरेटर। कैन यू टेल मी व्हाई आई एम अप्लाइंग सिलेक्ट ऑपरेटर हियर? तो नीचे का मत देखो, जो मैं दिखा रहा हूँ ना, ये ऊपर, ठीक है, ये ऊपर से देखो जहाँ पे मैंने लिखा है where I am writing select operator salary greater than equal to 85,000 from instructor. Now you tell me why I am applying this select operator here. सर क्योंकि हम लोग को एक ही कॉलम चाहिए, हम लोग सिर्फ एक ही कॉलम के ऊपर फोकस कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं। Okay, ठीक है। और कोई कुछ बोलना चाहेंगे? क्लास हाँ एकूना sorry, yeah, Rajesh has given the correct and I want the responses from you guys also. Tell me why select operator here? अरे कोई बाकी कितने स्टूडेंट्स है राजेश बताओ अभी? सर 21 टोटल 21 22 अटेंडेंस है, लेकिन आपको छोटे 21। अच्छा अच्छा, मेरे को 21 है। यस सर। आप उनमें से कितने सोए हुए हैं ये बताओ मुझे। सर मैं तो उड़ीसा में हूँ सर, आसाम में नहीं हूँ ना सर। नहीं, वो आप कुछ ऑपरेटर यूज करो रिलेशनल अलजेब्रा का और बताओ मुझे कौन कौन सोए हुए हैं। तो प्रोजेक्शन करके कर सकते हैं सर, हाँ, वर्चुअली। वही करके बताओ। हाँ, संचिता, सॉरी संचारी सर। संचारी, ओ संचारी। सर संचारी तो एडीबी में नहीं है सर, सर डब्ल्यूटी में है। ओह अच्छा अच्छा, संचारी इस क्लास में है ही नहीं। ठीक है। नहीं सर। और कौन से सोए हुए हैं बताओ मुझे। चलो कोई बात नहीं, ये तो पक्का है कि इसमें से कोई लोग ही जागे अभी। ठीक है, टाइम ही कुछ ऐसा है ना, आफ्टर लंच एनीवे। सो select operator because we are actually focusing on this particular condition, that is 85,000, and that is for the salary. And the next thing is that we are not actually talking about one or two columns. Okay, we are talking about the salary and we are talking about all the rows, right? हमें वो सारे रोज चाहिए जहां पे ये कंडीशन मैच हो रहा है, और वो कंडीशन क्या है? salary is greater than 85K. ठीक है, तो दैट्स व्हाई दिस इज सिलेक्ट ऑपरेटर। नाउ अब इसमें से अगर मैं आप लोगों को पूछ दूं कि जो आपको मिला अभी, जो जैसे ये आपने परफॉर्म किया सिग्मा सैलरी ग्रेटर देन 85K फ्रॉम इंस्ट्रक्टर, आपको ये टेबल मिल जाएगा। अब इस टेबल में से आपको चाहिए सपोज आईडी एंड नेम। मैं बोल रहा हूँ कि वो सारे इंस्ट्रक्टर्स का आईडी और नेम बताओ जिसका सैलरी 85K या से ज्यादा है। तब क्या होगा? तब मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि मुझे आईडी और नेम चाहिए। और आपको ये पता है कि जब मैं कुछ पार्टिकुलर कॉलम्स की बात करता हूँ तो मैं क्या ऑपरेटर यूज करता हूँ? आई यूज प्रोजेक्शन ऑपरेटर, राइट? I can use projection operator when we are talking about, right, we are talking about some particular attributes. So अब मैं क्या करूंगा, यहाँ तक तो मैंने निकाल लिया वो सारे एम्प्लॉइज जिसका सैलरी एज ग्रेटर देन इक्वल टू 85K। अब इसमें से चाहिए मुझे आईडी एंड नेम, क्यों ना मैं क्या करूंगा यहाँ पे डायरेक्टली आई विल अप्लाई दिस पाई आईडी सैलरी ऑपरेटर विथ रेस्पेक्ट टू दिस sigma get salary greater than 85K from instructor, and that will as a whole give you the ID and salary part of it. ठीक है, तो अल्टीमेटली हमें ये जो सबसे नीचे टेबल दिखाई दे रहा है आपको, वो मिल जाएगा आईडी, सैलरी और डिजायर्ड वैल्यूज।
Is this clear to all of you? Yes, sir. यस सर. Okay. सर वो Yes, जो sir. पहले आईडी वाला टेबल था वो उसका आईडी और सैलरी मिला सर. वही चार चार रो मतलब. नहीं, ये इंस्ट्रक्टर एक टेबल है, मैं आपको बहुत हाँ सर पहले था आप लोगों वो को बताया था, ये है पिछले टेबल, क्लास ठीक में. है? नहीं सर ठीक है, नहीं. यस सर. हाँ, ये एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। ये इंस्ट्रक्टर टेबल की बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इंस्ट्रक्टर टेबल। फ्रॉम दिस इंस्ट्रक्टर टेबल आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट दोस इंस्ट्रक्टर्स वेयर we have a salary greater than equal to 85K. So with that, I'm eliminating these facts like this 60K, 75K, 80K, 72K, 65, 62, 40, 80. ये सब मैं क्या कर रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ, राइट? सो उसके बाद आपको मिलेगा ओनली दिस 4 1 2 3 4 टुपल्स, और उसमें से आपको सिर्फ आईडी और नेम चाहिए, मतलब ये दो ही आपको चाहिए, लास्ट में होगा। आप बताओ, नाउ यू टेल मी। ये तो आ गया समझ में ना? यस सर. और याद रखना, ये रिलेशनल अलजेब्रा से एक ना एक क्वेश्चन गेट एग्जामिनेशन में पूछते ही है, ठीक है? इन गेट एग्जामिनेशंस 1 or 2 questions may be asked, okay, and frequently seen in the examinations. तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नाउ अगर ये क्लियर हो गया है तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। यस सर. Okay. So next, what we are trying to do, we are trying to join two tables. हम दो टेबल को ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? When we are joining two tables to relations, of course you should know that we can perform that with the help of Cartesian product. क्या मैथमेटिक्स में आप लोगों को याद है कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने कैसे निकाला था? Hello, can you guys recall that how we actually find out Cartesian product in mathematics? Sir, দুটা টেবুলৰ ক্ৰছ কৰি দিম স্যাৰ, লাইক ফৰ টেবুল এ টেবুল বি যদি আমি এ ক্ৰছ বি কৰোঁ তেতিয়া আমি আৰু কাৰ্টেছিয়ান প্ৰডাক্টটো পাম। Right, but ইয়াৰ কাৰণে ৰুলটো কি আছিলে? মনত পেলোৱা পাৰিবা? सर जैसे मैट्रिक्स में था, मैट्रिक्स में सर एक रो मल्टीप्लाई होगा दूसरे कॉलम से, का जो सेकंड वाला टेबल हाँ, कॉलम वो से मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में था, होगा. ये सर. पर हम अभी यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं। ये सर. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या करेंगे हम? देखो एक बार देख लो, ठीक है? ये ऊपर देखो, जहाँ पे माउस का कर्सर दिखाई दे रहा है, माउस का कर्सर दिखाई दे रहा है ना सबको? तो यस सर. ये ए बी अल्फा 1 बीटा 2 और इस साइड सी डी ई, ये सारे वैल्यूज, ये पहला वाला आर है और सेकेंड वाला आपका एस है, ठीक है? आर क्रॉस एस क्या होगा? ये अल्फा हुआ जो फर्स्ट रो है, इसको इनके सारे जो रोज हैं सबके साथ कंबाइन करो। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ? जैसे अल्फा 1 Yes, sir. अल्फा 10 ए, अल्फा 1 बीटा 10 ए, अल्फा 1 बीटा 20 बी, अल्फा 1 गामा 10 बी। यहाँ तक समझ में आ रहा है? बताओ। यस सर. Yes, तो sir. फिर से आप क्या कर सकते हो, ये बीटा 2 को भी बीटा 2 अल्फा 10 ए, बीटा 2 बीटा 10 ए, बीटा 2 बीटा 20 बी, बीटा 2 गामा 10 बी। अल्टीमेटली आपको ये वाला टेबल मिल जाएगा। आर कार्टेशियन प्रोडक्ट एस इज इक्वल टू ए बी सी डी ई अल्फा 1 अल्फा 10, जो भी मैंने अभी बताया आपको, ये सारे मिल जाएंगे। नाउ यहाँ पे आपका कितने रोज थे? 2, और यहाँ पे आपका कितने रोज थे? 4, राइट? 4. तो आप ये सारे कॉम्बाइन होके यहाँ पे आपको कितना मिल गया? 1 2 3 4 So 8. 5 6 7 8। इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ रोज
multiplied by both of these two. Matlab, suppose n1 is the number of rows in R and n2 is the number of rows in S, then n1 cross S2, n2 will be the total number of rows in Cartesian product of R cross S. ठीक है, आ गया समझ में? तो इसलिए यहाँ पे आपको 8 रोज मिल गया. ठीक है? Is this Cartesian Yes, sir. product concept clear to you? Yes, sir. Yes, sir. तो मुझे आप बताओ Yes, sir. आप लोग. Okay. ये दो टेबल, इन दोनों का अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूंगा, if I find out the Cartesian product of instructor and department table, how many tuples will get finally in their Cartesian product? How many total number of tuples or rows I'll get in their final Cartesian product? So take a screenshot of this. Okay, you will comment your answer. And I hope this Sir, is 84. enough for today. How much? 84 rows or tuples. Why 84? So, Sir, क्योंकि 12 into इसमें 12 into 7 है सर. The department और instruction वाला. Okay, और बाकी लोग बताओ. राजेश को मिला 84. आप लोगों को क्या मिला है? हेलो, स्क्रीनशॉट ले लिया था ना आप लोगों ने? कैलकुलेट करो Yes, sir. और बताना. ठीक है, राजेश इज करेक्ट, आंसर इज 84 tuples. ठीक है, so I think that's enough for today. Okay, sir. Okay, so we'll meet in the next class. Now let me take the attendance. है ना राजेश? Okay. जो Yes, क्वेश्चन sir. दिया हो, हाँ, जो क्वेश्चन दिया हो सब लोग अटेंड करना. ये आपके क्लासमेट्स लोग अटेंड क्यों नहीं करते हैं क्वेश्चन? पता नहीं सर, मतलब टाइम के बाद सर कमेंट करते हैं सर. अच्छा, ठीक है. तो आप थोड़ा स्ट्रिक्टली सर बोल दीजिए, मतलब. वही कैसे तो बोलूं, कोई अभी सामने होता तो हाथ बात उठा सकते थे ना. अभी आप लोग या वर्चुअली हो, सामने भी आते नहीं हो, मैं क्या कर सकता हूँ? उस पे कोई रेस्पॉन्ड करता नहीं है सर. वही देखो, संसारी को आवाज दे रहा हूँ, संसारी भी आवाज रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं. सर संचारी तो इस क्लास में नहीं है ना. वही मुझे आज पता चला कि उसने ADBMS स्टोर के कौन सा सब्जेक्ट है वो उसमें चला गया. बोल देना उसको, ठीक है? गलत किया. Yes, ठीक है, चलो ठीक है. Yes, sir. थैंक यू. Thank you, sir. sir. Very nice.